Hello everyone. So now we'll be starting with the features of business environment, and yesterday we people have started with this chapter. I've told you the meaning of business environment and I have given you some examples also regarding the dimensions of business environment in which it is actually present. But I've told you one more thing, that we'll be discussing all those dimensions in detail afterwards after studying the features. After studying the features of business environment, we'll get to know it much better. So let us start the features of business environment. I have told you earlier also, whenever we study features, they mean what is the nature of the concept, what is its characteristics, and how we can identify it. Okay? How you can identify it and how you can differentiate it from other concepts that is being told by the features. So first feature of business environment is it is the totality of external forces. Totality of external forces. So yesterday only I have told you, because it is environment, so it is our surrounding, but one important feature of environment is that it lies external to us. If you talk about the organization, what it means, it is not within the control of the organization, it is not the internal environment of the organization. Here we are pertaining to the external environment, those forces which are outside the control of the organization. Okay, they are external forces whom we cannot control fully. Okay, we cannot control them, but whose impact we have to bear, we have to work upon them, we have to adapt them, and then only we can survive in the economy. टोटलिटी का मतलब क्या है? एग्रीगेट. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं. जब हम कल इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वी हैव स्टडीड दैट इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को अपना एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते. किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक इंस्टीट्यूशन को एनवायरनमेंट नहीं बोला जा सकता कि भाई मेरा तो ये एनवायरनमेंट है. ठीक है, गवर्नमेंट मेरा, स्टेट गवर्नमेंट मेरा एनवायरनमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मेरा, ऐसा नहीं होता. ये पूरी ही टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस के एक्सटर्नल है, आपके बिजनेस के बाहर है, इंटरनल नहीं है. इंटरनल आपका एनवायरनमेंट है विच इज़ कंट्रोलेबल. ओके, बट वट एवर इज एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू हैव इट्स इफेक्ट इन द क्यूमुलेटिव वे. आपको उसको पूरे का एक इकट्ठा इफेक्ट ही देखना पड़ेगा. तो इसमें क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी ही फोर्सेस टोटलिटी एग्रीगेट नेचर पे आपके ऊपर वर्क करती हैं. आप किसी एक इंडिविजुअल को, आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को अपना बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ दोज फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल. ठीक है, तो आपको दो चीज़ें इसमें अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, साथ साथ दे आर टेकन इन एन एग्रीगेट वैल्यू. वी डोंट काउंट इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स एज आर एनवायरनमेंट, दे आर टेकन इन एग्रीगेट नेचर. नाउ सेकेंड feature of business environment is that it consists many specific and general forces. Specific and general force. Now we have discussed कि जितनी भी फोर्स होंगी सारी एक्सटर्नल होंगी, जितनी भी फोर्स होंगी वो एग्रीगेट नेचर पे होंगी. लेकिन अब बात आती है कितनी तरह की फोर्सेस होंगी. How many types of forces? So there are two types of forces which will be acting as an environment to our business, that are specific and general forces. Specific and general forces. So what is meant by specific? Specific means those forces which directly affects or influences our business. Okay, and general forces are those forces which do not affect us directly but they are having an effect on us indirectly. कहने का मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसका डायरेक्ट एक्शन मेरे बिजनेस के ऊपर क्या कर रहा है, एक इफेक्ट डाल रहा है. दूसरी तरफ जनरल फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट, जिनका कोई भी एक्शन लेने की वजह से हमारे ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हम भी बाकी लोगों की तरह उसके इफेक्ट से प्रभावित हैं. समझ रहे बात को? स्पेसिफिक फोर्सेस में इंडिविजुअल्स आ जाते हैं या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं. जैसे मान लो मेरा सप्लायर, जैसे कि मान लो मैं एक बिजनेस लेके बैठा हूँ,
ठीक है, मेरा एक सप्लायर है, उस सप्लायर ने बोल दिया मैं आपको माल देने से मना कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इससे मेरे बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है जो कि एक मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। दूसरी तरफ जैसे मान लो कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है, लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है। अब अगर लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है तो गवर्नमेंट ने ये तो अनाउंस किया नहीं कि इस बंदे का मैं होटल बंद करवाना चाहता हूँ, या इस बंदे का शॉप बंद रहेगी, या इस बंदे का बिजनेस बंद रहेगा, ऐसा तो है नहीं। उनने तो पूरी इकोनॉमी के लिए जनरल सेंस में लिया, समझ रहे हो, तो उनने किसी एक को तो टारगेट किया नहीं, उनका टारगेट मैं तो था ही नहीं। तो स्पेसिफिक और जनरल में यही डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती है मेरे एनवायरनमेंट में से जिनका स्पेसिफिक टारगेट मैं हूँ, मैं वो इंडिविजुअल्स, वो इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली मेरे को टारगेट कर रहे हैं और उनके एक्शन से मेरे ऊपर एक इफेक्ट रियलाइज हो रहा है। दूसरी तरफ जनरल फोर्सेस जो मैंने कल आपको 5 बताई थी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये होती हैं जनरल, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी एक बिजनेस को टारगेट नहीं करती, इनका एक डायरेक्ट एक्शन किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं जाता है ना। कभी भी गवर्नमेंट अनाउंस ये नहीं करेगी कि इस शहर के, इस जगह की, इस दुकान को मैं बंद कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो कभी भी किसी एक को टारगेट मान के नहीं चलते, वो जनरल नेचर में वर्क करते हैं, वो जनरल नेचर पे डिसीजन लेते हैं और उनके जो भी डिसीजन होते हैं सभी के ऊपर जनरल नेचर पे इफेक्ट करते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुई, गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, किसी एक बंदे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट थोड़ी हुआ, उसका तो सभी के ऊपर जनरल हुआ, समझ रहे बात को। तो ये ही डिफरेंस है स्पेसिफिक और जनरल में। स्पेसिफिक इंडिविजुअल को डायरेक्ट टारगेट करेंगी, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात है जनरल, इसका भी फर्क पड़ेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा। जैसे कि आज की डेट पे सभी व्यापारियों के ऊपर जनरली इस लॉकडाउन का असर पड़ रहा है। सो नाउ थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट all the forces which are in aggregate nature, which are external to our business, which may be specific, which may be general, they are interrelated। कहने का मतलब वो interrelated हैं, independent नहीं है, ठीक है। और आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। whenever some concepts are interrelated, तो they both influences or they all influences each other, and if they are independent they don't affect any, है ना, एनी ऑफ देम। सो होता क्या है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड हो तो एक का इफेक्ट दूसरे पे देखने को मिलता है, दूसरे का इफेक्ट इस पे देखने को मिलता है, जितने भी इंटर रिलेटेड है सभी का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी एक की वजह से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई जितनी भी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जो एग्रीगेट में है, अलग अलग डायमेंशन में है, जो स्पेसिफिक हैं, जो जनरल हैं, ये क्या आपस में भी इंटर रिलेटेड है या फिर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उसका आंसर ये फीचर हमको देता है। ये बोलता है कि जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो एग्रीगेट में लो, अलग अलग डायमेंशन में लो, चाहे स्पेसिफिक में लो, चाहे जनरल में लो, जितनी भी फोर्सेस हैं ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कहने का मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको जो कल 2 एग्जांपल्स लिए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा और उससे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लॉकडाउन का। सो ये क्या था, एक पॉलिटिकल डिसीजन था, ठीक है, और ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काउंट होता है। दूसरी तरफ क्या हुआ, आरबीआई ने भी डिसीजन लिया। आरबीआई ने डिसीजन क्या लिया कि भाई हम बैंक्स क्या देंगे अपने कस्टमर्स को, अपने जो लोन बियरर्स हैं उनको देंगे हम मोरेटोरियम, ठीक है, और जितने भी डिपॉजिट्स होंगे उन पर भी रिलैक्सेशन करेंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो हुआ क्या, आपको क्या लगता है इन दोनों का आपस में कुछ इफेक्ट है? आपको क्या लगता है आरबीआई नॉर्मल डेज पे, नॉर्मल वर्किंग में, नॉर्मल इकोनॉमी में ऐसा डिसीजन लेता है, या फिर उसने लॉकडाउन की वजह से ऐसा डिसीजन लिया? क्या इन दोनों डिसीजंस में कुछ ना कुछ रिलेशन था? क्या आरबीआई अपना ये डिसीजन बिना लॉकडाउन हुए या बिना गवर्नमेंट के ऐसे पॉलिसी अनाउंस किए बिना हो पाता? नहीं होता। तो यहाँ पे बात क्या समझ में आई कि जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो उसका ये इफेक्ट हुआ कि भाई अब लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी इकनॉमी में मंदी आने वाली है, यहाँ पे इकनॉमी में क्या है, इकनॉमी की जो एक्सपेंडिचर है कम होने वाला है, और एक्सपेंडिचर की वजह से कोरोलरी इनकम कम होने वाली है। तो उसकी वजह से बैंक ने भी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए मोरेटोरियम अनाउंस किया कि यहाँ पे अब लोन बियरर्स को अपनी इंस्टॉलमेंट्स देने में प्रॉब्लम आएगी, क्रेडिट की रीपेमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो गिव देम सम बेनिफिट। ओके, एंड व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैट such decision. So it makes us understand what कि these two forces were interrelated.
अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आरबीआई भी इस तरह की कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं करती। अगर हम कोई और एग्जांपल लें, आप जैसे कि कई सारे और भी एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आ रहा है। आपने देखा कि स्कूल्स के टीचिंग पैटर्न में कैसे चेंज आया। स्कूल का ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न कैसा है, क्लासरूम टीचिंग, बट आज की डेट पे स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, नेटवर्क पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी इस तरीके से जुड़े हुए हैं, या इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, ठीक है। और पॉलिटिकल डिसीजन के साथ साथ लीगली अभी हमारे को स्कूल खोलना बंद है, समझ रहे बात को। तो ये जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट या इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इससे हमको थर्ड फीचर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ में आता है, जिसका मतलब ये है कि चाहे फोर्सेस स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, उनमें एक दूसरे के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालती हैं, और ये जो क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस है वो हमको हमारे बिजनेस को उठाना पड़ता है।